Hello everyone, welcome back to class. Today we are going to cover economy related current affairs. सबसे पहले हमारे सामने है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023. पीयूष गोयल ने ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को रिलीज किया था, स्टार्ट किया मार्च 31 में, बट दिस केम इनटू इफेक्ट ऑन अप्रैल 1, 2023. Foreign trade policy seeks to take India's export to $2 trillion by 2030. The Foreign Trade Policy 2023 encourages recognition of new towns through Towns of Export Excellence Scheme and exporters through Status Holder Scheme. सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखने वाली है कि $2 trillion USD बाय 2030 इतना हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने का ये एम है. साथ ही साथ में इनकरेज करती है नई रिकॉग्निशन ऑफ न्यू टाउन्स थ्रू टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस. ऐसे नए टाउन्स को वो रिकॉग्नाइज करना चाहेगी, और एक्सपोर्टर्स को थ्रू स्टेटस होल्डर स्कीम. ये दो नई स्कीम्स हैं. Foreign Trade Policy 2023 is facilitating exports by streamlining the popular advance authorization and EPCG schemes and enabling merchanting trade from India. कैसे फैसिलिटेट करना चाहती है एक्सपोर्ट को? स्ट्रीमलाइन करके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है एडवांस ऑथराइजेशन एंड ईपीसीजी को, ईपीसीजी स्कीम्स को, और साथ ही साथ में इनेबलिंग मर्चेंटिंग ट्रेड्स फ्रॉम इंडिया. इसका एम है एट प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेटेशन टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एक्सपोर्टर्स. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का एम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है. Re-engineering and automation to facilitate ease of doing business for exporters. The previous foreign trade policy for 2015 to 2020 had targeted exports to US dollars of US dollars 900 billion by 2020. 2020 तक 900 बिलियन एक्सपोर्ट टारगेट कर रही थी हमारी पुरानी ट्रेड पॉलिसी. नई वाली कितना टारगेट करती है गाइज? अभी मैंने बताया आप लोगों को, $2 trillion $2 trillion. बिलियन से सीधा अब ट्रिलियन में बात हो रही है. 900 बिलियन से 2 ट्रिलियन. This target was extended along with policy for 3 years till March 2023. इस टारगेट को मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया था. उसके बाद अब ऑब्वियसली एज वी सॉ 1 अप्रैल से नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ गई है. व्हाट आर द 4 पिलर्स of this foreign trade policy? The first one is incentive to remission. Second is export promotion through collaboration. किसके साथ? Exporters, states, district, Indian missions. Third is ease of doing business, reduction in transaction cost and e-initiatives. Ease of doing business करना है, reduction करना है transaction cost में और e-initiatives में. Emerging areas क्या क्या है? E-commerce, developing districts as export hubs and streamlining SCOMET, SCOMET policy. E-commerce developing districts as export hubs, पहला तो ये है, एंड दूसरा है streamlining SCOMET policy. Key highlights: process re-engineering and automation. The policy emphasizes export promotion and development, moving away from an incentive regime. एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट की बात करती है, इंसेंटिव रिजीम से धीरे धीरे हटने की वो बात कर रही है. रिडक्शन इन फी स्ट्रक्चर एंड IT बेस्ड स्कीम्स. Towns of Export Excellence TEE, 4 new towns namely फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी, उनको डेजिग्नेट किया गया है as Towns of Export Excellence in addition to the existing 39 towns. ऑलरेडी 39 ऐसे टाउन्स हैं, उनके अलावा 4 नए ये टाउन्स बने हैं. कौन कौन से हैं? फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी. Recognition of exporters. Exporter firms recognized with status based on export performance, promoting export from districts, facilitating e-commerce export, facilitation under EPCG scheme, facilitation under advance authorization scheme and amnesty scheme. दूसरा देख लेते हैं क्या है इसमें. आप लोगों का एक होमवर्क है, पहले हमने जो पढ़ा है ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाला SCOMET पॉलिसी, ये क्या है? जाइए और इसे चेक कीजिए, ये क्या है. दिस इज योर होमवर्क. नेक्स्ट इज नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग NMNF. To promote natural farming across the country, the Centre has launched the National Mission on Natural Farming (NMNF) by upscaling the Bharatiya
प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP scheme. NMNF will cover 7.5 lakh hectare area by developing 15,000 clusters in the next 4 years with a total budget outlay of rupees 1,584 crore center share. Under NMNF, farmers will receive a financial assistance of 15,000 per hectare per year for 3 years for the creation of on-farm input production infrastructure. The center intends to set up 15,000 Bharatiya Prakritik Kheti Bio Inputs Resources Centers (BRCs) to provide easy access to bio-resources like Jeevamrit, Ghana Jeevamrit and Neemashtra, wherein cow dung and urine, neem and bioculture play an important role. तो बेसिकली नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग क्या करता है, ये पहली बात तो अपस्केल करता है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP स्कीम को. ये BPKP स्कीम थी, आप लोग क्या ये जाके चेक कीजिए ये स्कीम क्या थी. सी इट इज नॉट जस्ट अबाउट आपको करंट अफेयर मैगजीन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दी है सिर्फ उसको मगअप कर लीजिए. कुछ ऐसे कीवर्ड्स आप इनको भी जाके चेक कीजिए बिकॉज मैगजीन में वो सब कुछ नहीं इंक्लूड कर सकते हैं. एंड आई एम नॉट टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं मैं बता देती हूँ, बट ईच एंड एवरीथिंग आई एम नॉट टेलिंग यू बिकॉज अदरवाइज फिर आपका क्या इंटरेस्ट रहेगा. अनटिल अनलेस यू गो ऑन योर ओन एंड सर्च, आपको कैसे उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा एंड कैसे आपको चीजें पता लगेंगी, कैसे आप उसमें एक्टिवली कैसे एक्टिव थिंकिंग कैसे होगी. So please go and search this भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP स्कीम. तो NMNF कवर करेगा 7.5 लाख हेक्टर्स को, डेवलप करेगा 15,000 क्लस्टर्स नेक्स्ट 4 इयर्स में. सेंटर का बजट इसमें होगा अबाउट 1,500 करोड़. फार्मर्स को इसमें असिस्टेंस मिलेगी 15,000 की पर ईयर फॉर 3 इयर्स ताकि वो क्रिएट कर सकें ऑन फार्म इनपुट प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर. सेंटर इंटेंड्स करता है टू सेटअप 15,000 भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स BRCs. 15,000 BRCs सेंटर बनाना चाहता है. किस लिए? टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू बायो रिसोर्सेज लाइक जीवामृत, ये बायो रिसोर्सेज है, घना जीवामृत, नीमास्त्र, वेरिन काउडंग एंड यूरिन, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट कर रहा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम PMFME. PMFE इंप्लीमेंट की जा रही है फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट फॉर सेटिंग अप एंड अपग्रेडेशन ऑफ 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस. किसके थ्रू? थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी ड्यूरिंग 5 years. टाइम पीरियड क्या है? 2020-21 to 2024-25 with an outlay of rupees 10,000 crore. Out of this, a total of 22,000 units and 7,331 units have been allocated to Maharashtra and Rajasthan respectively. PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम PMFME क्या है ये स्कीम देख लेते हैं. लॉन्च हुई थी 2020 में, पार्ट है ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर PMFME स्कीम इज एज फॉलोज. 60-40 इसका एक्सपेंडिचर शेयरिंग है. 60 गवर्नमेंट करेगी, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 40 स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी विद यूटीज एंड लेजिस्लेचर्स. स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज एंड लेजिस्लेचर ये 40 करेंगी, बाकी 60 सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. Guys, you should know the difference between centrally sponsored scheme, central sector scheme. Central sector scheme होती है वो पूरी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का. 90-10 होगा बिटवीन सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स. 100% असिस्टेंस फॉर यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर्स. रन करने का इसका पीरियड है 5 years 2020-21 to 2024-25. One district, one product approach ODOP plan to be implemented to encompass input procurement, common service availability and product marketing. One district, one product approach भी इसमें लगाई जाएगी. Next is 3 centers of excellence for horticultural crops approved under MIDH. The Mission for Integrated Development of Horticulture MIDH under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has approved 3 new Center of Excellence COEs for horticulture crops on March 9, 2023. Ministry of Agriculture Farmers Welfare ने अप्रूव किए हैं 49 COEs till now.
out of which 3 COEs have been approved on March 9, 2023. 49 अप्रूव हो चुके हैं, जिनमें से 3 अभी मार्च 9 में अप्रूव हुए हैं. These are Center for Excellence for Kamalam Dragon Fruit by Indian Institute of Horticulture Research IIHR Bangalore, Karnataka at Experimental Station Hiregli, Bangalore, Karnataka. Hiregli, Bangalore, Karnataka. ड्रैगन फ्रूट के लिए एक्सीलेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, कहाँ पे है? कर्नाटका में है. दूसरा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो एंड वेजिटेबल्स अंडर इंडो इजराइल एक्शन एट पानी कोयली, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में है. ये जजपुर डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिए, जयपुर नहीं है, ये जजपुर डिस्ट्रिक्ट है. कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स अंडर इंडो इजराइल एक्शन प्लान एट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर फार्म, कोडार, खांडेपर, पोंडा, साउथ गोवा. ये साउथ गोवा में है. वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स वाला साउथ गोवा में है, मैंगो एंड वेजिटेबल्स वाला जजपुर उड़ीसा में है, एंड ड्रैगन फ्रूट वाला बैंगलोर में है. ये दोनों इजराइल के साथ में जॉइंट एक्शंस हैं. मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. अगेन सेंटर स्टेट का रेशो होगा इसमें. दिस इज फॉर होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर कवरिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम्स, स्पाइसेस, फ्लावर्स, एरोमेटिक प्लांट्स, कोकोनट, कैश्यू, कोकोआ एंड बैम्बू. स्वायत्त इनिशिएटिव क्या है ये? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम कमेमोरेट्स द सक्सेस ऑफ स्वायत्त गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कमेमोरेट करता है सक्सेस ऑफ स्वायत्त. थोड़ा सा इसे करेक्ट कर लीजिएगा, दिस सीम्स लाइक एन आई, इसीलिए मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई. इवन दो आई हैव रेड दिस थिंग 100 times बट स्टिल आई गॉट कंफ्यूज. सो आप लोग भी थोड़ा देख लीजिएगा, ये टी है, इतना क्लियर नहीं है बट स्टिल सी, दिस इज टी, दिस इज SWAYATT जैसा कि हेडिंग में दिया हुआ है, यहाँ पे इतना क्लियरली नहीं दे रखा है. स्वायत्त, an initiative to promote startups, women and youth advantage through government e-transactions on GEM, government e-marketplace. स्वायत्त इनिशिएटिव किस लिए है? स्टार्टअप्स प्रमोट करता है, women and youth advantage through government e-transactions on GEM. स्वायत्त इनिशिएटिव के बारे में देख लेते हैं. स्टार्टअप्स, women and youth advantage through e-transactions, इसका फुल फॉर्म है स्वायत्त. GEM पे इंटेंट क्या है? टू प्रमोट करना इंक्लूसिवनेस ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन द पोर्टल. वेरियस कैटेगरीज को प्रमोट करना चाहता है, इंक्लूसिव बनना चाहता है. मोर देन 8.5 lakh माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस MSCs are registered on GEM portal who have been able to get business of over 1.87 lakh crore spread across 68 lakh plus orders. 8.5 लाख MSMEs है रजिस्टर्ड है GEM में, उनको अराउंड 1.87 लाख करोड़ का बिजनेस भी मिला है. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च हुआ था 2016 में. किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम LEAN 2023 में लॉन्च हुई है. मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने इसे लॉन्च किया है. क्रिएट अवेयरनेस अमंग MSMEs अबाउट लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. क्या होता है लीन मैन्युफैक्चरिंग? लीन मैन्युफैक्चरिंग एक मेथोडोलॉजी होती है जो फोकस करती है ऑन मिनिमाइजिंग वेस्ट विद इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स वाइल साइमल्टेनियसली मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी. वेस्ट को मिनिमाइज करना है और प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना है, ये होता है लीन मैन्युफैक्चरिंग. इस स्कीम के अंडर MSMEs will implement lean manufacturing tools like 5S, Kaizen, Kanban, Visual Workplace, Pokayoka, etc. ये कुछ टूल्स हैं. चैंपियंस पोर्टल क्या है देख लेते हैं. चैंपियंस किसके लिए स्टैंड करता है? इट स्टैंड्स फॉर क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ. Champions Portal launched by Prime Minister on 1st June 2020 is an ICT-based technology system for making the smaller units big by helping and hand-holding them. Amendments in the PM Kusum scheme ये देख लेते हैं. March 2023 में the Ministry of New and Renewable Energy has taken up several steps to achieve the targets under the Pradhan Mantri Kisan Urja
सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम स्कीम। पीएम कुसुम हम बहुत बार सुनते हैं, पर पीएम कुसुम की फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। याद रखिएगा, हो सकता है आपको पीएम कुसुम ना दे, पूरा स्कीम का नाम दे दे और आप कंफ्यूज हो जाएं कौन सी स्कीम है। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है। क्या इंक्लूड करती है? दिस इंक्लूड्स अमेंडमेंट इन द स्कीम गाइडलाइंस बेस्ड ऑन फीडबैक रिसीव ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन स्कीम, जो कि एक्सटेंड हो गया था टिल March 31, 2026। पीएम कुसुम स्कीम क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 2019 में लॉन्च हुई थी। एम क्या है इस स्कीम का? दिस एम्स एट इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स इन इंडिया along with honoring India's commitment to increase the share of installed capacity of electric power from non-fossil fuel sources to 40% by 2030 as part of intended nationally determined contributions। इंश्योर करना एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ फॉर फार्मर्स इन इंडिया, सबसे पहले तो वो ये करती है। दूसरा क्या करती है? ऑनरिंग इंडियाज कमिटमेंट टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी of electric power from non-fossil fuel sources to 40%। non-fossil fuel sources से हमें 40% करनी है हमारी कैपेसिटी बाय 2030। हमारी एनर्जी कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी हमें 40% इंक्रीज करनी है बाय 2030। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमें 40% इंक्रीज करनी है फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स क्या है स्कीम की? एज ऑन February 28, 2023, grid connected solar power plants of 89.45 megawatt capacity have been installed and 2.09 lakh agriculture pumps have been solarized under the scheme। इतने एग्रीकल्चर पंप्स को सोलराइज कर दिया गया है स्कीम के अंदर। ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट्स इनकी 89.45 मेगावाट कैपेसिटी है, उनको इंस्टॉल भी कर दिया गया है और इतने एग्रीकल्चर पंप्स को सोलराइज कर दिया गया है। पीएम मित्रा पार्क्स, प्राइम मिनिस्टर ने 2023 में अनाउंस किए थे मार्च में पीएम मित्रा पार्क्स, पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, जो कि सेटअप होंगे तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। Important points क्या हैं? These parks are inspired by Prime Minister Narendra Modi's 5F vision। 5F vision क्या है? Which aims to boost the Indian textile industry from farm to fashion to foreign markets। The PM Mitra scheme was announced in October 2021 and the parks are expected to be set up by 2026-27 with a total outlay of 4,445 crores। पीएम मित्रा पार्क्स थे वो अनाउंस किए गए थे 2021 में एंड एक्सपेक्टेड है कि वो सेटअप हो जाएंगे 2026-27 में विद द टोटल आउटले ऑफ 4,445 करोड़। 5F विजन है मोदी जी का इसमें, विच एम्स टू बूस्ट इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्रॉम फार्म टू फैशन टू फॉरेन मार्केट्स। फार्म टू फैशन टू फॉरेन मार्केट्स, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। फार्म टू फैशन टू फॉरेन मार्केट्स किससे रिलेटेड है? पीएम मित्रा से रिलेटेड है। पीएम मित्रा स्कीम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पीएम मित्रा में पार्क डेवलप किया जाएगा बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल विच विल बी ओन्ड बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन (NTTM) recent projects were cleared on 14 September 2022। recent 23 strategic research projects हैं, अराउंड 60 करोड़ के अप्रूव हुई थी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 टू 2023-24। मिशन इंप्लीमेंट किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। एम क्या है इसका? इट एम्स टू पोजिशन द कंट्री एज अ ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड इंक्रीज, टेक्निकल टेक्सटाइल्स में अपने आप को एक ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंगली, एंड इंक्रीज द यूज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स इन डोमेस्टिक मार्केट। एम क्या है इसका? एट टेकिंग द डोमेस्टिक मार्केट साइज ऑफ $40 बिलियन टू $50 बिलियन बाय 2024। स्टेटस क्या है टेक्निकल टेक्सटाइल्स का इंडिया? द करंट वर्ल्ड मार्केट इज $250 बिलियन एंड इंडिया का शेयर उसमें 16 बिलियन है। बहुत बड़ा मार्केट है, 250 बिलियन का इंडिया का शेयर उसमें सिर्फ 16 बिलियन है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 6% ऑफ द ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट। सबसे बड़ा प्लेयर इसमें यूएसए है, फिर वेस्टर्न यूरोप है, फिर चाइना है एंड जापान है। गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या है देख लेते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स को बूस्ट करने के लिए इंडिया में। स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क SITP
टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को लॉन्च किया था 2005 में. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैड लॉन्च्ड टेक्नोलॉजी मिशन ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल्स TMMT with 2 mini missions for 5 years from 2010-11 to 2014-15. 2 mini missions लॉन्च किए थे गवर्नमेंट ने. हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर HSN कोड्स फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स. 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने डेडिकेटेड 207 HSN कोड्स टू टेक्निकल टेक्सटाइल्स. इन्हें HSN कोड्स भी दिए थे, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर भी दिया था. काफ़ी रिसर्च वगैरह चलती रहती है टेक्निकल टेक्सटाइल्स में. कुछ ना कुछ नया टेक्सटाइल बनता रहता है, कुछ पुराने में ट्वीक्स होते रहते हैं. 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है. 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट टेक्निकल टेक्सटाइल्स में. गाइस, हमने इतना कुछ पढ़ लिया टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में, बट हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते क्या हैं आखिरकार? दिस इज योर होमवर्क. गो एंड चेक व्हाट आर टेक्निकल टेक्सटाइल्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल टेक्सटाइल्स. जैसे कॉटन है, जूट है, इन सबसे टेक्निकल टेक्सटाइल कैसे डिफरेंट होते हैं, इसका डेफिनेशन देखिए जाके. नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग NCOEGPS 2022 में सरबंदा सोनोवाल जी ने इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग लॉन्च किया. इसके की पॉइंट्स क्या हैं? ये एक मेजर इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग का टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग ग्रीनर सोल्यूशन. अनाउंसमेंट किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर ने एट INMARCO 2022 इन मार्को 2022 में मुंबई में. The Energy and Research Institute TERI is the knowledge and implementing partner of this project. TERI इसका implementing partner है. India's first floating financial literacy camp, India Post Payment Bank IPPB ने कंडक्ट किया इंडिया का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप. इस इनिशिएटिव को कहा गया निवेशक दीदी. किसी लिए था ये? टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी बाय द वुमेन फॉर द वुमेन इन डल लेक ऑफ श्रीनगर. कहाँ पे हुआ? डल लेक में हुआ. By women for women, promote financial literacy by the women for the women. कंडक्ट किया था इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अंडर इनिशिएटिव निवेशक दीदी. लोकल रेजिडेंट्स के अराउंड ये हुआ था, वर्ल्ड फेमस दल बैंक के अराउंड में, और लोकल रेजिडेंट्स के लिए हुआ है. निवेशक दीदी हेल्ड द फाइनेंशियल लिटरेसी सेशन इन द लोकल कश्मीरी लैंग्वेज. लोकल कश्मीरी लैंग्वेज में सेशन हुआ है. 15th Urban Mobility India UMI Conference and Expo 2022 नवंबर 4, 2022 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप सिंह पुरी और चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला श्री पिनरई विजयम जॉइंटली उन्होंने इनॉग्रेट किया था. 15th Urban Mobility India UMI Conference and Expo 2022 कोची केरला में. ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ था? दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 4 to 6 नवंबर 2022. कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? कोची केरला में हुआ. थीम क्या थी इसकी? आज़ादी एट 75, सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी. ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ केरला. ये 16th अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI कॉन्फ्रेंस था एंड एक्सपो 2023 कहाँ पे होल्ड होगा? विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली. विनर ऑफ अवार्ड्स कौन कौन है? द सिटी विल बी the city with the most sustainable transport system, अहमदाबाद बस्ट रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सबसे सस्टेनेबल इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड मिला है. बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड मिला है नवी मुंबई को फॉर सस्टेनेबल सिटी बस इनिशिएटिव्स. सिटी विद बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम न्यू टाउन कोलकाता. सिटी विद द बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन्नई. सिटी विद द मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड BCLL. The city with the best green transport initiative Indore for green mobility initiative. The city for the best multimodal integration metro rail UP Metro Rail Corporation Lucknow Uttar Pradesh. The best metro rail for passenger service and satisfaction Bangalore Metro Rail Corporation. ये 15th Urban Mobility India UMI Conference and Expo में ये सब अवार्ड्स दिए गए हैं. PM गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट 2022 कहाँ पे हुई? वाराणसी में हुई है. इस समिट को नवंबर में ऑर्गेनाइज किया गया 2022 में. किसने ऑर्गेनाइज किया? द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, इन दोनों ने मिलकर इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है. की हाईलाइट्स क्या है? सरबंदा सोनोवाल ने ले किया था फाउंडेशन स्टोन ऑफ कम्युनिटी जेटीज और नेशनल वाटरवेज 1 रिवर गंगा एट रविदास घाट. रविदास घाट पे इसके
फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है कम्युनिटी जेटीज का नेशनल वाटरवे 1 पे, रिवर गंगा से पास होता है नेशनल वाटरवे 1। नेशनल वाटरवेज इंपॉर्टेंट इंडिया के कौन कौन से हम देख लेते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल वाटरवे 1 सबसे बड़ा है, ये 1620 किलोमीटर का है। कहां से पास होता है? गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम, हल्दिया से इलाहाबाद तक का है। ये कौन कौन सी स्टेट से पास होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। नेशनल वाटरवे 2 891 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, धुबरी टू सदिया, असम का है ये। नेशनल वाटरवे 3 205 किलोमीटर्स का है, ये काफी छोटा सिस्टम है कंपेयर टू अदर्स। वेस्ट कोस्ट कैनल को ये केटर करता है। कोटापुरम कोलम, चंपकारा एंड उद्योगमंडल कैनल्स, फिर से बहुत बड़े नेम से तो हम इन्हें थोड़ा चंक्स में याद कर लेते हैं। कोटापुरम कोलम, चंपकारा एंड उद्योगमंडल कैनल्स। उद्योगमंडल कैनल्स कहाँ पे हैं? ये केरला में है। नेशनल वाटरवे 4 1078 किलोमीटर्स, कृष्णा रिवर, विजयवाड़ा टू मुक्तयला आंध्र प्रदेश। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान किसके लिए है? फॉर प्रोवाइडिंग मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू वेरियस इकोनॉमिक जोन्स, वाज लॉन्च्ड ऑन 13 अक्टूबर 2021। नमस्ते नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 17 अगस्त 2022 को लॉन्च हुई है। लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, MOSJE। कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है? नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSKFDC इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। टाइप क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब सोचिए, याद कीजिए, मैंने आपको बताया है कौन कौन सी स्कीम्स बताई थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर है तो 100% इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। बजट क्या है? द स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड विद एन आउटले ऑफ 360 करोड़ फॉर 4 ईयर्स 2022-23 से 2025-26। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? जीरो फैटलिटीज इन सैनिटेशन वर्क इन इंडिया, ऑल सैनिटेशन वर्क इज परफॉर्म बाय स्किल्ड वर्कर्स, नो सैनिटेशन वर्कर्स कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ह्यूमन फीकल मैटर। इन सब के लिए लॉन्च की गई है। नमस्ते स्कीम किसके लिए है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है, सफाई कर्मचारी के लिए। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, यू मस्ट नो अबाउट इट। 2022 में लॉन्च हुई है। नेशनल सोलर मिशन NSM देख लेते हैं क्या है। इनिशियली इसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन JNNSM बोला जाता था, पर अब इसे सिर्फ नेशनल सोलर मिशन NSM बोला जाता है। 2010 में लॉन्च हुआ था। लॉन्च विद एन एम टू जनरेट 20 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी बाय ईयर 2022, बट लेटर इंक्रीज टू 100 गीगावाट। पहले इसका एम था 20 गीगावाट जनरेट करे 2022 तक, पर अब इसे इंक्रीज कर दिया गया था 100 गीगावाट तक। 100 गीगावाट सोलर पावर को डिवाइड किस किस में किया गया है? रूफ टॉप सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इससे 40 गीगावाट आएगा, और लार्ज एंड मीडियम स्केल ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स, इससे 60 गीगावाट आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। 40 गीगावाट 60 गीगावाट कहाँ से आएगा? टोटल 100 गीगावाट है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2023 असेसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज करती है। इसे बेस्ड किस पे है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान फॉर द ईयर 2020। एडिशन क्या है? 5th एडिशन है। प्रीवियसली एडिशंस आए इसके 2015, 16, 17, 18 और 19 में। 19 के बाद में अब सीधे 2022 में रिलीज हुआ है। स्टेट्स हैव बीन प्लेस्ड अंडर द 4 कैटेगरीज। किस किस में प्लेस किया गया है? टॉप अचीवर्स, एस्पायरर्स एंड इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम्स। क्या है ये? बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2020 असेसमेंट। टॉप अचीवर्स कैटेगरी में कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना। अचीवर्स में है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। एस्पायरर्स में कौन कौन है? असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरला, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम्स में बाकी सारी स्टेट्स हैं, अंडमान निकोबार, बिहार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट, इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम्स कैटेगरी दिल्ली इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम कैटेगरी में है। जम्मू कश्मीर भी इसमें है। बाकी कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, त्रिपुरा।
देखिए टॉप अचीवर्स कैटेगरी में कोई भी आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दिख रही है? नहीं दिख रही है। कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टॉप अचीवर्स कैटेगरी में नहीं है। इनफैक्ट कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अचीवर्स कैटेगरी में भी नहीं है, एस्पायरर्स में भी नहीं है। इमर्जिंग बिजनेस लीडर्स में मोस्टली सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ रही हैं। अब हम कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस देख लेते हैं। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2023, इंडिया रैंक्ड 131 इन द 2023 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। इसको रिलीज किया था वॉशिंगटन हेडक्वार्टर्स द हेरिटेज फाउंडेशन ने, थिंक टैंक है ये। इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एक एनुअल इंडेक्स और रैंकिंग है, 1995 में क्रिएट किया गया था, बहुत पुरानी है, बाय द हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये दोनों ने मिलकर इसे बनाया था। इंडेक्स क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इन द वर्ल्ड्स नेशंस। इंडेक्स कंप्राइज करता है 12 एस्पेक्ट्स, डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में, रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट साइज, रेगुलेटरी एफिशिएंसी एंड मार्केट ओपननेस में। सिंगापुर सबसे फर्स्ट पे आया है 83.9 के साथ में, सेकंड इज स्विट्जरलैंड विद 83.8, थर्ड इज आयरलैंड विद 82 एंड फोर्थ इज ताइवान 80। नॉर्थ कोरिया को प्लेस किया गया लास्ट पोजीशन पे 176 पे। इंडिया का क्या पोजीशन था? इंडिया का इकोनॉमिक फ्रीडम स्कोर था 52.9, मेकिंग इट्स इकोनॉमी द 131st फ्रीएस्ट इन द 2023 इंडेक्स। इट्स स्कोर इज 1 पॉइंट लोअर देन लास्ट ईयर। कल पिछली बार से भी लोअर स्कोर है, 1 स्कोर लोअर है, 131st रैंक है। India is ranked 27th out of 39 countries in the Asia Pacific region and overall score भी है इसका below world and regional averages है। Overall rule of law is weak in India. The country's property rights score is below the world average. Property rights score India का below average है, below world average है। इसकी judicial effectiveness score भी world average के below है। Regulatory freedom burdensome है। फर्स्ट इस पे सिंगापुर है, याद रखिएगा। नाम क्या है इसका? अगेन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। इसे रिलीज करता है द हेरिटेज फाउंडेशन एंड बना था मिलके, हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल के दोनों ने मिलके बनाया था। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023, UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने पब्लिश की 2023 में द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023। की हाइलाइट्स क्या है रिपोर्ट के देख लेते हैं। द रिपोर्ट हाइलाइट्स दैट डेवलप्ड कंट्रीज बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम दीज टेक्नोलॉजीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज में मिस आउट ऑन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इफ डिसेसिव एक्शंस आर नॉट टेकन। अगर डिसेसिवली डेवलपिंग कंट्रीज एक्शन नहीं ले पाई तो काफी अपॉर्चुनिटीज वो मिस भी कर देंगी। रिपोर्ट एनालाइज करती है मार्केट साइज ऑफ 17 ग्रीन एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड देयर पोटेंशियल टू क्रिएट जॉब्स। Green technologies can create a market worth $9.5 trillion by 2030, up from $1.5 trillion. Green technologies मतलब new technologies, ये market create कर सकती हैं 9.5 trillion by 2020। इसको प्रोजेक्शंस अब किए गए हैं 1.5 ट्रिलियन का 2020 में जितना इन्होंने मार्केट क्रिएट किया उससे बहुत ज़्यादा 2030 में हो सकता है इन द नेक्स्ट 10 years। The total exports of green technologies from developed countries jumped to more than $156 billion in 2021 from about $60 billion in 2018। डेवलप कंट्री में इसका टोटल एक्सपोर्ट्स इतना जंप हुआ है $156 से 60 बिलियन इन 60 बिलियन 2018 में था, उससे जंप करके 2021 में 156 बिलियन। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज से जो एक्सपोर्ट्स थे दोज रोज टू ओनली अबाउट 75 बिलियन फ्रॉम $57 बिलियन। डेवलपिंग कंट्रीज में इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया एक्सपोर्ट में ग्रीन टेक्नोलॉजीज का जितना डेवलप्ड कंट्रीज में आया है। According to Frontier Technology Readiness Index included in the report, only a few developing countries have the capacity to take advantage of frontier technologies such as blockchain, drones and solar power। सब किसी developing countries में capacity ही नहीं है कि नई नई technologies का वो फायदा भी उठा सकें। Green frontier technologies such as electric vehicles, solar and wind energy and green hydrogen are expected to reach a market value of 2.1 trillion in 2030. The Frontier Technology Readiness Index, which has ranked 166 countries, dominate है by high income economies जैसे कि US, Sweden, Singapore, Switzerland and Netherlands.
द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द लिस्ट इंक्लूड्स इमर्जिंग इकोनॉमीज, नोटेबली ब्राजील जिसको 40 रैंक मिली है, चाइना जिसको 35 रैंक मिली है, एंड इंडिया इज नॉट ऑल्सो रैंक दैट बैड, 46 रैंक है इंडिया की। रशियन फेडरेशन का 31 रैंक है एंड साउथ अफ्रीका का रैंक है 50, बट रिमेंबर इंडिया इज रैंक्ड बिहाइंड ब्राजील एंड बिहाइंड चाइना। India remains the greatest overperformer, ranking at 67 positions better than expected, followed by Philippines 54 positions better and Vietnam 44 better. City Finance Rankings 2022 portal. City Finance Rankings को which has been made live by the Ministry of Housing and Urban Affairs. Ministry of Housing and Urban Affairs ने live कर दी हैं, निकाल दी हैं City Finance Rankings, 20th March को निकाली थी। Urban local bodies across the country can now participate in the rankings through an entirely digital 100% पेपरलेस फॉर्मेट से सारी अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स में। द लास्ट डेट पार्टिसिपेशन के लिए है 31 में। फाइनल जो रैंकिंग्स होंगी वो जुलाई 2023 में रिलीज हो जाएंगी। एज पर द गाइडलाइन सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय श्री हरदीप पुरी, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं अर्बन डेवलपमेंट के, 2022 में। और पार्टिसिपेटिंग अर्बन लोकल बॉडीज को 15 इंडिकेटर्स अक्रॉस 3 की म्युनिसिपल फाइनेंस असेसमेंट पैरामीटर्स में इवैल्यूएट किया गया है, नेमली रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस एंड फिस्कल गवर्नेंस। इससे पहले 2 की इनिशिएटिव्स ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को लॉन्च किया गया था दिसंबर 28, 2022 में। दीज आर सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स, ये लॉन्च की गई थी इवैल्यूएट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए एंड रिवॉर्ड करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ अक्रॉस की फाइनेंशियल पैरामीटर्स। दूसरा था सिटी ब्यूटी कंपटीशन, जिसका एम था इनकरेज करना, रिकॉग्नाइज करना द ट्रांसफॉर्मेशनल एफर्ट्स मेड बाय सिटीज एंड वार्ड्स इन इंडिया टू क्रिएट ब्यूटिफुल, इनोवेटिव एंड इंक्लूसिव पब्लिक स्पेसेस। गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए इकोनॉमी का थोड़ा सा हैवी पार्ट है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा हैवी है, बट डोंट वरी, जब तक आप सोचेंगे नहीं कि कुछ चीज़ डिफिकल्ट है आपको वो डिफिकल्ट नहीं लगेगी। सोचिए ये भी उतना ही ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत आराम से हम लोग इसे कवर कर लेंगे। आई प्रॉमिस यू गाइज 6th तक मैं आपका पूरा ये ई दृष्टि पूरी मैगजीन में आपकी कवर करने वाली हूँ। आई हैव प्रॉमिस्ड यू दिस थिंग एंड आई एम गोइंग टू डिलीवर ऑन माई प्रॉमिस, सो डोंट वरी, जस्ट कीप वॉचिंग। थैंक यू।